Hello everyone, welcome to part number 3. Now we have to start from question number 51. Let's get started. Okay, so question number 51 says simplified expression for following Boolean function f of a, b, c, d that is equal to 0, 1, 2, 3, 6, 12, 13, 15, 15, 14, 15 is R. ठीक है, तो we have to solve a k map of 4 variables. ठीक है जी, let us solve this quickly. Okay, we have to firstly draw a k map of 4 variables. Oh, I missed one. Okay, so there are 4 variables a, b, c, d. A, b, and from here I am taking it as c, d. Fine. So here it is a bar, b bar, a bar b, a b, or a b bar. Fine. So here it is c bar, d bar, c bar, d, c, d, and c, d bar. Okay ji. Now see 0 here, 0, summation मतलब कि 1, right? 0, 1, 2, 3, 4 is not, 5 not, then 6 is there. ठीक है जी, 7 नहीं है. Then we have 8, no, 9, no, 10, no, 11, no. That is 12, 13, 14 and 15. ठीक है, अभी हमने क्या करनी है, इसकी ग्रुपिंग करनी है. Here we'll make one pair. ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी हमें एक पेयर मिलेगा. ओके, नाउ here we have one is left. तो इसके लिए दो चांसेस हैं. Either I'll make a group, either I'll make a group like this or this. Fine. ठीक है जी, let us make this. ठीक है, ये वाली के लिए क्या आएगा इक्वेशन a bar b bar, right? For this we'll getting a bar b. If I cover this one, right, तो मेरे पास क्या आने वाला है, that is c d bar and यहाँ से I get a bar. ठीक है, where I get these option a bar b bar, right, plus a bar b. Sorry, this is a b na, not a bar b. This is a b. Okay, so a b and a bar c bar, a bar c bar, d bar. A bar c d bar, we have a bar c d bar, this one, right? So this is correct. Now if I am going to make a pair with this, तो क्या आंसर आएगा? Let me change the color then. अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? That is b c d bar, b c d bar, b c d bar. This मतलब ये दोनों तो सेम ही रहने वाले हैं, just because these pairs will be the same. Okay जी. Okay, so B and D is the answer. That is option number 4 is right in this case. Option number 4 is right. Okay, now do the question number 52. तो क्या बोल रही है? The following program is stored in memory unit of the basic computer. What is the content of accumulator after the execution of program? All location number listed below are in the hexadecimal. ओके, दिस इज़ द लोकेशन, मतलब मेमोरी लोकेशन ये है और उस लोकेशन पे ये वाले इंस्ट्रक्शन गिवन है. ओके, सो हियर आर द लोकेशन एंड दिस आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन. ठीक है, लोकेशन है हमारे पास मेमोरी लोकेशंस और उस मेमोरी लोकेशन पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है. जैसे कि 210 लोकेशन नंबर 210 पे वो बोल रहा है कि अकोमोलेटर को आप क्लियर कर दो. CLA फॉर क्लियर द अकोमोलेटर, तो अकोमोलेटर इस टाइम पे क्लियर है. ओके जी, मतलब उसमें
कोई वैल्यू नहीं है, वी आर क्लियरिंग इट, मतलब जीरो कर दिया। नेक्स्ट 212 लोकेशन पे क्या बोला, 211 लोकेशन इट सेड ऐड 217, मतलब कि हम अकोमोलेटर में ऐड करेंगे जो कंटेंट पड़े हैं 217 लोकेशन पे। ठीक है, देखो 217 हेयर क्या पड़ा है, दैट इज 1 2 3 4 H फॉर हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है जी, ये हमने ऐड किए। देन इट सेड इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कर दो, 212 इज सेइंग इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट अकोमोलेटर बाय 1। ओके, वी हैव टू ऐड 1 to the accumulator. This becomes now 1235H. Now it said STA 217. 217. ST stands for store the value of the accumulator at the location 217. अब 217 लोकेशन पे ना ये वाली वैल्यू को स्टोर कर दिया जाए। ओके गुड, वी डू। देन व्हाट डिड इट सेड, LDA 218. LD stands for load accumulator with with the location 218. सो 218 के साथ हमने जो लोड अकोमोलेटर विद द कंटेंट ऑफ 218। सो अभी अकोमोलेटर के कंटेंट क्या होगा, क्योंकि हमने नई वैल्यू को लोड किया है जो पड़ी है लोकेशन नंबर 218 पे, दैट इज 9CE2H। ओके, नाउ दिस इज द कंटेंट ऑफ accumulator, fine। okay, now it's at CMA what, complement, complement करो accumulator को। okay, see this, here it is 9, we have to write in binary, then C for 12, then E is 14, sorry 1, then 2 को कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0, right। now we have to complement it, okay, complement 0 1 1 0, then 0 0 1 1, then 0 0 1, and then 1 1 0 and 1। now what will the contents, क्या कंटेंट बनेंगे हमारे अब, this is 8 4 12 plus 1 13, 13 is D। okay, here it is 1 and this is 2 plus 1 3 and this is 6। तो नए कंटेंट हमारे पास क्या है, 631D, फाइन। नाउ इट सेड दैट वी हैव टू एंड विद 217। ठीक है, एंड करना है हमने। ठीक है, तो 217 लोकेशन पे हमारे पास ये वैल्यू, वी हैव दिस वैल्यू राइट, दैट इज 1 2 3 5। ठीक है, क्योंकि हमने अपडेट करी थी यहाँ पे वैल्यू। ओके, this one, this H, and now we have 6 3 1 D H। ठीक है, we have to perform the AND operation, right, we have to perform the AND operation। so so we have, I am going to clear this, right, see, I am going to clear this, right, to make a space। okay, तो यहाँ पे क्या है 1, this is 0001, then we have 2, then we have 3, then we have 5। यहाँ पे क्या है, D is for 13, 1 1 0 1। okay, here we have 1, that is this, then 3, then 6 4 5 6। okay जी, now do AND operator, 1
0 1 0, then again 1, then 0 0 0, then this will be 0 1 1 1 0 0, then this is what, 0 0 1 0 0, and then again it's 0. Okay, now this is 0, this is 2, this is 1, and this is 5 h, क्योंकि it will be in hexadecimal format, right? This is in binary, तो हमने इसको hexadecimal convert किया, तो this is our answer. ठीक है, उसके बाद तो सिंपल है कि इस लोकेशन पे वैल्यू यही है. ठीक है, तो क्या कंटेंट है हमारे कम्युलेटर के आफ्टर परफॉर्मिंग द एंड ऑपरेशन? दिस इज 0215h, 0215h, दिस वन. Okay, so option number 4 is correct. Okay, now let us move to the next question. Okay, question number 53 said the process of removing details from a given state representation is called. देखो, removing details, जब हमने डिटेल को रिमूव करना है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्शन, सिंपली एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है जी. एब्स्ट्रैक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फिजिकल, spatial or temporal details or attribute in the study of objects or system to focus attention on the details of greater importance. Okay, it is natural in the process of generalization. So you are going to do some generalization, then abstraction is important. Okay, now what is data extraction? Now data extraction is the act or process of retrieving data out of the data source for further data processing or data storage, right? And data mining, what is data mining? Data mining is a process of discovering patterns in large data set involving the methods at the intersection of machine learning, statistic and database system. When you want to discover some particular pattern, right? ठीक है जी. डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस, राइट, दीज टर्म्स आर कॉमन और यहाँ से एक नए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नेट में, राइट? तो बेटर वी हैव टू रिसर्च लिटिल बिट ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो सिलेक्शन हमें पता ही है, बेसिकली पर्टिकुलरली कुछ भी सिलेक्ट करना. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस. ओके, दिस इज इजी, आई होप सो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 54. Let us quickly erase this. 54 क्या बोल रहा है? It said LR is a regular language. Then question number 54. Question number 54. Match list 1 with list 2. LR is a regular language. LCF is a context-free language. This is our recursive and this is recursive enumeration language. तो ये क्या कर रहा है? Basically there are 4 languages are given. ठीक है, इन 4 languages के ऊपर different type of operation perform होंगे and we have to write कि उस operation के बाद जो नई language या फिर कुछ language जो generate होगी वो किसके अंदर आ रही है. ठीक है, तो simple question ये पूछ रहा है. So पहला recursive enumeration, then recursive, then context free. Okay, then it said रिकर्सिव लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट. देखो, इसके लिए ना वी हैव टू मेक श्योर कि हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि लैंग्वेज के ऊपर ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होता है. ठीक है, तो क्या वो लैंग्वेज कंपेटेबल है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए या फिर नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट द रिकर्सिव लैंग्वेज ना, देन इट इज़ रिकर्सिव. ठीक है जी, और रिकर्सिव का यूनियन लिया मैंने रिकर्सिव एन्यूमरेशन के साथ, देन इट विल बी रिकर्सिव एन्यूमरेशन. ठीक है, तो इसके साथ यही मेरा मैच करेगा. ठीक है, देन सेकंड क्या है? कंटेक्स्ट फ्री का कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कंटेक्स्ट फ्री इज रिकर्सिव, मतलब कॉम्प्लीमेंट जो है बेसिकली वो रिकर्सिव ही होता है. यूनियन रिकर्सिव
रिकर्सिव लैंग्वेज, ठीक है, तो ये रिकर्सिव ही रहेगा, तो इसका यही होगा. देन कंटेक्स्ट फ्री बचा, obviously this will match with this, so which one option? A with 1, B with 2, so option number 3 is correct. Okay, अगर आपको ऐसे में कोई डाउट है then you can make a comment in the comment box. Okay, I'll share the chart, मैं एक चार्ट को शेयर करूँगी that you can क्लियरली आइडेंटिफाई कि इस लैंग्वेज की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो कैसे काम करेंगी, दूसरे के साथ क्लब करने के बाद भी कैसे काम करेंगी, राइट? ओके, let us move to the next question. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द यूनियन ऑफ टू कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री. ऑब्वियसली ट्रू, यूनियन का यही ट्रू है, ठीक है. द इंटरसेक्शन ऑफ टू कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री. नो, दिस इज नॉट. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री. नो, इट मे और मे नॉट, ठीक है, बेसिकली तो रिकर्सिव ही होता है, तो मे और मे नॉट. Okay, if a language is context free, it can always be accepted by deterministic push down automata. No, why not indeterministic push down automata? ठीक है, वो भी तो accept कर सकता है ना. Fine, so this is also incorrect. Okay, okay, let us move to the next question then. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. देखो, वेन एवर ना नॉट पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ना है. समटाइम्स व्हाट वी डू, इट विल आस्क फॉर द करेक्ट, ठीक है, और हम इनकरेक्ट के बारे में ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि इन अ पैनिक सिचुएशन ना, वहाँ पे सब लोग पैनिक होते हैं और हम सिली मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन को रीड करने में, ठीक है. सो वी हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी क्लियरली. नॉट ट्रू इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ऐसे क्वेश्चन है. इम्प्लीमेंट्स ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स, जो ट्रू नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली ये ट्रू है. ये ह्यूरिस्टिक सर्च को, ये ह्यूरिस्टिक सर्च पे काम करता है. और ह्यूरिस्टिक सर्च क्या है? ह्यूरिस्टिक सर्च इज अ सर्च टेक्निक दैट सीक्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय आइटरेटिव एनहेंसिंग द सॉल्यूशन यूजिंग अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन और अ कॉस्ट एनालिसिस. ठीक है, तो ये दो टाइप का हो सकता है. एक डायरेक्ट ह्यूरिस्टिक सर्च होता है, जैसे कि हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में करते हैं, ठीक है, एंड वीक ह्यूरिस्टिक होता है, जैसे कि यू कैन यूज इन ए स्टार एल्गोरिथम, ठीक है. तो जो कैसे, जैसे वी हैव अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, जैसे कि मिनिमम मुझे कॉस्ट लेके जानी है, ठीक है, आई विल यूज द ह्यूरिस्टिक. इन दोनों में से मिनिमम क्या है, देन आई विल चूज वन, राइट. देयर इज सम काइंड ऑफ ह्यूरिस्टिक फॉर्मूला हेयर दैट विल डिफाइन मी कि हाँ ये कुछ ह्यूरिस्टिक रहेगी, ठीक है. सोल्यूशन स्टेप्स आर नॉट एक्सप्लिसिट. सोल्यूशन स्टेप्स आर एक्सप्लिसिट, यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन स्टेप्स आर नॉट एक्सप्लिसिट. ऑब्वियसली ट्रू. नॉलेज इज इम्प्रिसाइज, राइट. यस, नॉलेज है ना जो, वो प्ले करती है एक विटल रोल इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सोल्यूशन स्टेप्स आर नॉट एक्सप्लिसिट. It said that every AI program has to do a process of searching for the solution steps that is not explicit in nature. क्योंकि हमें हर बार कुछ ना कुछ सर्च करते ही रहना है. 3 क्या बोल रहा है? नॉलेज इज इम्प्रिसाइज. यस, नॉलेज क्या प्ले करती है? एक विटल रोल प्ले करती है इंटेलिजेंस में, राइट. व्हेन वी आर क्रिएटिंग सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट वर्क्स और ऑन इम्प्लीमेंट्स रेपिटेशन मैकेनिज्म. नो, दिस इज फॉल्स. इट वर्क्स, ठीक है, ये वाला नहीं है. रेपिटेशन मैकेनिज्म इज नॉट देयर, ठीक है. वी नीड टू implement new ideas so that our machine will become more and more intelligent. Fine. Okay, so this will be the answer. Question number 57 said that in the context of concurrency control, now DPMS, right, concurrency control, a given pair of operation is a schedule is called conflict schedule if. देखो, conflict schedule कब होगा? तो ए क्या बोल रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेशन इज राइट ऑपरेशन.
both the operations are performed on the same data item. C क्या बोल रहा है, both the operations are performed by the different transactions, and D is both of the operations are performed on the different data items, right? तो देखो दो operations हैं, सबसे पहले तो देखो conflict कब आएगा. It said that two operations are said to be conflicting if all the conditions satisfy. तो A condition क्या satisfy होनी चाहिए, A1 is they belong to the different transaction. ठीक है जी, different transactions होने चाहिए, transactions ACTION. बी क्या बोल रहा है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए. बी कह रहा है कि ऑपरेट ऑन द सेम डेटा आइटम, दे ऑपरेट ऑन द सेम डेटा item. Okay, and third one is, what did it said, at least one of them is writable operation, this one. ठीक है ना, एक तो राइटेबल होना ही चाहिए बिकॉज रीड रीड ऑपरेशन नेवर कन्फ्लिक्ट. ठीक है, रीड राइट जब हम पढ़ते हैं दैट इज राइट राइट, सॉरी WW फॉर राइट राइट, राइट रीड राइट, दिस विल क्रिएट कन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन शुड बी देयर. ओके, they both perform the operation on the same data item. जैसे कि one is going to write and other one is also going to write. ठीक है, तो same data item is there. Okay, and both the operations are performed by the different transactions. So this is P transaction and this is Q. This will create a conflict schedule. Okay, so ABC is correct. Option number 2 is fine. ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैचिंग वन. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत मतलब वैरायटी मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट से मैचिंग तो आने की संभावना है, राइट. ओके, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ डैग, DAG फॉर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. ठीक है, क्रूस्कल्स MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम कितना लेगा. ठीक है, बेलमैन फोर्ड कितना लेगा और फ्लॉयड वार्शल कितना लेगा. ओके, इफ़ यू गेट ना एक भी क्लिक कर गया देन यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. जैसे कि वी नो कि जो फ्लॉयड वार्शल है ना दैट विल बी टेक द दिस, ये क्या लेता है, थीटा ऑफ क्यूब. ठीक है जी. ओके, सो फ्लॉयड वार्शल के साथ मैंने डी का 4 मैच किया, सो वी आर गेटिंग दिस. तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, राइट. नाउ ए क्या है, टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग, इधर इट इज़ गेटिंग 1 और इट इज़ गेटिंग द थर्ड, मतलब ऑर्डर होना चाहिए या फिर थीटा होना चाहिए. फाइन, ठीक है, ऑर्डर होना चाहिए या फिर थीटा होना चाहिए. ओके, बी सेट द क्रूस्कल्स मिनिमम एल्गोरिथम, इट शुड बी 1 और 3 एंड सी इज 2, सी का 2 होना चाहिए. ओके देन फाइन, बट इट कुडंट मेक एनी सेंस यार. I mean, it is order of v plus e and it is theta of v plus e. Actually, na, yes, I could get it. This question got cancelled by, this question got cancelled, है ना, and NTA has given marks to all, just because there is a slightly error, right? This order and theta है ना, marks to all is given. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज, मतलब 1 और 2 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जहाँ पे थोड़ी माइनर सी मिस्टेक रहती है, क्वेश्चन क्लैरिटी से फ्रेम नहीं होता. ठीक है, सो दिस यू हैव टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन है ना जो ऐसे क्वेश्चंस में यू हैव टू मेक श्योर कि आपने एक ना एक अटेम्प्ट किया हो, अदरवाइज अगर इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो ये ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना, यू हैव टू मार्क, मेक श्योर इट. फाइन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay, so question number 60 said find the lexicographic ordering of a bit string given below based on the ordering 0 is less than 1. ओके, तो हमें लेक्सोग्राफिक ऑर्डर में बिट स्ट्रिंग्स को जनरेट करना है. लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर मतलब कि डिक्शनरी ऑर्डर की तरह, ठीक है. और उसने बोला है कि ना जो ज़ीरो की वैल्यू है वो कम है 1 से, ठीक है जी. ज़ीरो की वैल्यू कम है 1 से. एम आई मिस सम क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 59 assuming that the system called fork never fails. ठीक है जी. Considering the following C program P1 and P2 executed on a Linux system. ठीक है. int main. ओके, तो हमें देखना है these are some code P1 के लिए और P2 के लिए. P1 display happy 8 times. क्या ये 8 टाइम डिस्प्ले करेगा और P2 डिस्प्ले करेगा हैप्पी 12 टाइम्स. In the light of the above statement, choose the correct answer from the given options below. Both the statements are true. Both the statements are false. One is true. This is okay. See, fork क्या करता है basically? Fork system call. Fork एक system call है जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम child processes को create कर सकें, right? Once a child process is created, both the parent and the child process run the next line, following the fork command simultaneously. देखो fork क्या है? Fork एक system call है जो हम यूज़ करेंगे child process को create करने के लिए. फाइन. कह रहा है कि एक बार अगर चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया, ठीक है, बोथ द पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस रन करेंगे, जो फोक के साइमल्टेनियसली कमांड्स रहेंगे, ठीक है जी. ओके, अगर हमारे पास ना एक वी हैव एन नंबर ऑफ फॉक्स, ठीक है, अगर हमने एन नंबर ऑफ फॉक कॉल सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट किया, देन हाउ मेनी चाइल्ड प्रोसेसेस आर देयर? देयर आर 2 raised to the power n minus 1 child processes. ओके, तो 2 raised to the power n minus 1 चाइल्ड प्रोसेसेस रहेंगे हमारे पास, ठीक है जी. ओके, तो देखो यहाँ पे कितने फॉक हुए हैं. आई एम सिंपली गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. देयर इज 3 फॉक्स ना, तो उसने कितने पूछा है? वी हैव टू, मतलब ये P1 है ना, मतलब टोटल, ठीक है. अब इसने पूछा 2 raised to the power n फॉक कॉल्स होंगी. कितनी बार चला? 3 टाइम हो रहा है ना. fork 1 2 and 3. put here 2 raised to the power 3 that is 8. देखो यहाँ पे चाइल्ड पूछा है. अब यहाँ पे सिंपल पूछा है कि कितनी बार होगा, तो यहाँ पे चाइल्ड प्लस पेरेंट बोथ आर देयर, राइट, ठीक है. तो 2 raised to the power n क्या होगा? ये टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगी जिसमें से इतनी क्या है? चाइल्ड प्रोसेसेस है. फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, लेट अस मूव. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है. फॉक, देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है? फॉक देन हैप्पी देन फॉक देन हैप्पी देन फॉक देन हैप्पी. ये कैसे चलेगा? देखो फर्स्ट फॉक हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो एक हुई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुई, ठीक है. द फर्स्ट फॉक अ न्यू चाइल्ड प्रोसेस विद 2 फॉक एंड द printf इज क्रिएटेड, ठीक है. तो यहाँ पे 2 बार हो गया ना, जस्ट बिकॉज टोटल नंबर ऑफ फॉक यहाँ पे अगर मैं करती तो कितना होता? 2 raised to the power n, ठीक है. दैट इज n कितना है? 1, तो 2 दैट इज 2 raised to the power 1 दैट इज 1, ठीक है. 2 raised to the power 1 दैट इज 2, सॉरी. अब नेक्स्ट क्या है? फॉक देन हैप्पी. सी हियर, अब ये वाली भी इंक्लूड होगी जस्ट बिकॉज देयर आर साइमल्टेनियसली ऑर्डर ऑफ द फॉक कॉल्स, राइट. तो यहाँ पे क्या है? मोर चाइल्ड प्रोसेस आर क्रिएटेड एट ईच फॉक कमांड. तो यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स और यहाँ पे 8 टाइम्स, क्योंकि ये वाले भी तो फर्दर टू फर्दर कॉल करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर टोटल कितनी बार होना चाहिए? 8 और 4 12 और 2 14. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि यहाँ पे 14 टाइम्स फॉक क्रिएट होना चाहिए था, ना कि 12 टाइम्स. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज false. So option number 3 is the right answer for this question. Okay, I hope it is clear. If you are not getting a fork command, you can just Google it. You will find it in a better way.
Okay, so question number 60. Find the lexicographic order of the bit strings given below based on the ordering. What did it say कि 0 की वैल्यू है ना जो वो लेस है 1 से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स गिवन है और हमें इसका लेक्सोग्राफिक ऑर्डर निकालना है, ठीक है, सेम एज वी डू इन डिक्शनरी। ओके, देखो बेटर क्या रहेगा, इसको चेंज कर लो। लेट अस सपोज कि इसकी वैल्यू ले ली ए एंड इसकी ले ली बी, ठीक है, क्योंकि इजी रहेगा हमारे लिए। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए बी। ओके जी, नाउ ए बी ए, दिस वन ए बी ए, third is ABB, A, B, B, and then next it is said that A triple A B, triple A, then B, then next it is saying that A, B, A B। देखो अब कैसे करेंगे इसको अरेंज, डिक्शनरी ऑर्डरिंग में कैसे रहता है, ठीक है, वैसे ही करना है हमने। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, देखो सबसे पहले ए लेके आने हैं, दिस वन, लेट मी चेंज द कलर। सबसे पहले ये आना चाहिए, ठीक है ना, एज पर द डिक्शनरी रूल। तो ट्रिपल ए देन बी। ओके जी, नाउ व्हाट इट सेड दैट, देन हमारे पास ए वाला दिस ए बी, ठीक है जी, ए बी। क्यों, क्योंकि जो ए की पावर है वो कम है और बी इज हैविंग द मोर पावर। फाइन, नेक्स्ट क्या रहेगा, ए बी ए। ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट, ए बी। और नेक्स्ट ए बी। देखो हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, देखो बी हैज़ अ मोर पावर ना, तो देखो दो बी कहाँ पे आ रहे हैं, दिस है ना एंड दिस, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमने लगाना है, देखो ए हैज़ द लेस पावर, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू मेंटेन एन ऑर्डर ऑफ द पावर दैट इज गिवन हियर, 0 is less than 1। Fine. Similarly, this is the correct order. Now we can convert this order into 0001. Okay, 0001, this. Then we have 001, right? This 2 is the answer, na? Option number B is right answer here. Okay, let us move to the next question. See, now we can start the example step by step, ठीक है। तो step by step करते हैं इस example को पूरे ध्यान से, ठीक है। ये we all know कि कैसे आया है, ठीक है जी। a की वैल्यू क्या है 0 एंड b की वैल्यू क्या है 1, ठीक है जी, डन। ओके, पहले देखो दिस, तो अल्फाबेटिकली a आ रहा है, ओके, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। ओके, दिस विल रिमेन द सेम। अब हमें क्या चेक करना है कि सेकंड पे की क्या है, देखो अब क्या करना है, वी हैव टू सॉर्ट, ए वालों को कर दो ऊपर और बी वालों को कर दो इसके बॉटम पे। वाई, जस्ट बिकॉज ए वैल्यू इज लेस देन एज कंपेयर टू बी। ओके जी, डन, वी डिड। नाउ अब क्या करना है, वी हैव टू चेक दिस, ठीक है। अब इस लाइन को चेक करना है, प्लस ये भी डिटेल में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है ना। अब हमने जो हम करके आए हैं सॉर्टिंग, तो पहले ए वाले ही आने चाहिए, बाद में ए बी वाले आने चाहिए। ओके, डन। सो दीज आर ए वाले, ठीक है जी, ए वाले, और यहाँ पे ए और बी, ठीक है। तो क्या है, ए की वैल्यू लेस है बी से, तो वी नीड टू शफल दिस, ठीक है। इसको शफल करेंगे तो पहले ए आ जाएगा, देन बी आ जाएगा, देन अगेन दिस, ठीक है जी। ए बी रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ए वाले लेटर्स लिए, ठीक है जी, पहले ए ये था, देन वी हैव टू शफल दिस विद दिस। फाइन, आई होप ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव स्टिल हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू। ऑब्जेक्ट बिहेवियरल मॉडल, द एनालिसिस परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। जब आपको ऑब्जेक्ट बिहेवियर मॉडल क्रिएट करना है तो एनालिस्ट कौन कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करेगा। तो ए क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट द ऑल यूज केसेस, सभी यूज केसेस को इवैल्यूएट करना। देन बी इज सेड दैट build state transition diagram for the state, obviously. C is review the object behavior
object behavior model to verify accuracy and consistency, and these identify events that do not derive the interaction consequence. कह रहे identify event that do not derive, जो derive नहीं करेंगे interaction sequence को, ठीक है. तो what we need to do, हमें पता है कि देखो अब options में देखो only 3 should be correct, ठीक है. तो एक ऐसा है जो क्या है करेक्ट नहीं है, जो कल्प्रेट है, तो हमें उसको फाइंड आउट करना है. देन विल गेट कि हाँ जी ये तो आने ही चाहिए, ठीक है. तो एक नहीं आएगा एंड दे आर गोइंग टू स्मार्टली प्ले विद द ऑप्शंस, ठीक है. तो जो बिहेवियरल मॉडल है वो क्या इंडिकेट करता है, हाउ द सॉफ्टवेयर विल रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इवेंट, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा सॉफ्टवेयर हमारे एक्सटर्नल इवेंट्स के साथ, ठीक है. तो क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं, इवेल्युएट हम करते हैं सभी यूज केसेस को ताकि हम फुली अंडरस्टैंड कर सके सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन विद इन द सिस्टम, राइट. सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन, तो ये पॉइंट तो आएगा हमारे पास. सेकंड क्या होता है, आइडेंटिफाई इवेंट्स दैट डिराइव द इंटरेक्शन सीक्वेंस एंड अंडरस्टूड हाउ दीज इवेंट्स रिलेट टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, कि कैसे ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करेंगे. देन क्रिएट अ सीक्वेंस, हम सीक्वेंस बनाते हैं यूज केसेस का. देन हम एक स्टेट डायग्राम बनाते हैं, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम बनाया जाता है. फिर हम रिव्यू करते हैं उस बिहेवियरल मॉडल को. तो ये 3 स्टेप्स शुड बी एडेड, ठीक है जी. ये 3 स्टेप्स को आने चाहिए. तो ABC शुड बी द आंसर हियर. ओके. Okay, question number 62 said that which among the following statement are true? A is a hash function takes a message of arbitrary length and generate a fixed length code. Obviously this is correct, ठीक है. तो हमारे पास देखो मतलब जितनी फिक्स वैल्यू रहेंगी जैसे 0 to 9 है, ठीक है, तो उसी के अंदर ही आएगा, तो ये जनरेट करेगा एक फिक्स लेंथ कोड. This is true. A hash function take a message of fixed length and generate a code of variable length. This is just a contradiction. So this one is not true. A hash function may give some hash value for distinct messages, same hash value. Obviously, अगर let us suppose I have 2 values, जैसे कि 12 है और 2 है, ठीक है, more 10, ठीक है. what I get the same hash value for these both 2 keys, ठीक है. तो this is also true and this is also true. So A and C are the correct answer for this question. Okay, question number 63 says arrange the following types of cohesion from best to worst type. ठीक है, there are type of cohesion, right? ठीक है, cohesion क्या है? Cohesion is a type of ranking which is used to measure the degree of modules that are functionally related. Okay, functionally related. And हमें पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कपलिंग एंड कोहेजन से 1 क्वेश्चन आने के चांसेस हर बार ही रहते हैं, इधर फ्रॉम द टाइप्स और इधर फ्रॉम द रिलेशनशिप, ठीक है. जैसे कि कोहेजन हाई होना चाहिए एंड कपलिंग लो होनी चाहिए. Okay, there is some sequence, right? Sequence क्या है? सबसे पहले है हमारे पास functional cohesion, then we have sequential. I'll put the screenshot here, ठीक है, कि क्या order रहना चाहिए. Then communication, then procedural, then temporal, then logical and then coincidental. ठीक है, तो degree of cohesion क्या है? low, ऐसे high जाएगी. Okay, then what should be the order? It should be B, C, B, C. तो कैसे रहेगा? B, C, E, D, A. Fine. Option number 4 is the correct one. That is B, sequential, right? Then we have communicational. Then we have procedural. Then we have temporal. Then we have logical. Okay, you can check it from the diagram that I pasted in my video. Okay, now let us move toward the next question. GBR directed graph whose vertex set is the set of numbers from 0. So let's start with question number 64. It said that let G be a directed graph whose vertex set is the set of numbers from 1 to 100.
ठीक है, वी हैव वर्टेक्स सेट दैट इंक्लूड द नंबर 1 to 100. देयर इज एन एज फ्रॉम a vertex I to a vertex J if and only if either now C twist will come, है ना. तो J की वैल्यू क्या हो सकती है, I+1 और J हो सकता है 3i, मतलब 3 into I. The minimum number of edges in a path in G from vertex 1 to vertex 100 are. ओके, सो कितना हो सकता है, देखो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस. अब यहाँ पे क्या है, ट्विस्ट है, कह रहा है कि J की वैल्यू है ना, इधर इट इज फ्रॉम I+1 और इट विल बी J इज इक्वल टू 3i, राइट. 3 into I मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आप ला सकते हो. और क्या पूछ रहा है वो, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस. वी हैव टू सर्च फॉर द मिनिमम. देखो मिनिमम चाहिए. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा. देखो उसने बोला ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज टू थिंक इन अ रिवर्स वे. ओके, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ पाथ फ्रॉम 1 to 100 ट्राई टू फाइंड अ पाथ फ्रॉम 100 to 1, राइट. तो एज का मिनिमम सीक्वेंस हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे देखो हमारे पास है ना दिस. अगर J की वैल्यू है 1 तो हमने क्या लिया, उसके रिवर्स लिया, दैट इज 3. देन क्या होगा 9. देन क्या होना चाहिए, 10, राइट. 10 I+1 भी हो सकता है ना. देन वी हैव 11. देन इट शुड बी 33. then it should be multiplied by 3, that is 99. then it should be I+1, that is 100. तो पाथ बन गया ट्रिवर्सिंग का, दिस टू दिस देयर इज अ पाथ ना. देखो पहले दिस इज कि हमें मिनिमम फाइंड करना है, वी नीड टू रिमेंबर ऑलवेज दिस. तो कितने नंबर फेजेस हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7. So 7 is the correct answer. Option number 4 is correct. Okay, देखो यहाँ पे ना आपको स्मार्टली वर्क करना है. देखो आपको कैच निकालना है क्वेश्चन में से, क्या कैच निकलेगा, इधर यू कैन यूज दिस वन, इधर यू कैन यूज दिस वन, राइट. तो आपको देखना है कि आई हैव टू ट्रिवर्स एंड व्हाट शुड बी द minimum number of edges in question, right. Okay, so this is the right answer. Now let us move toward the next question. Fine, now let us do this question. Okay, this is super simple question, DBMS से आया है. what to do, ये क्या है, देखो सिंगल क्या होता है, टू रिप्रेजेंट एन एंटिटी, एंड डबल कर दिया तो हम क्या बन गया, वीक एंटिटी, राइट. तो ए का सिंपल आंसर मुझे विजिबल हो रहा है कि एट्रीब्यूट इससे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट एंड दिस इज दिस. तो आंसर क्या रहेगा हमारा, शुड बी द आंसर, क्विकली मैच करो. ए का है 2, ए इज 2, दिस बी इज 1, राइट, सी इज 4, फाइन, एंड डी इज 3rd. यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको करने में आपको 10 सेकेंड्स लगने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. एंड व्हाट दे डू, देखो व्हाइल ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चन ना, पहले इजी क्वेश्चन पे फोकस करना है, जस्ट बिकॉज इट विल गिव यू 2 marks एंड दैट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑल्सो विल गिव यू द 2 marks, राइट. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस. ओके, let us start with question number 66. So question number 66 said that consider the following recursive Java function if that takes 2 long arguments and returns a float value. ठीक है, ले क्या रहा है वो, 2 लॉन्ग टाइप के आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न कर रहा है हमें फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू, राइट. ओके, सो इट सेट दैट पब्लिक स्टैटिक फ्लोट एफ. ठीक है जी, इसमें 2 वैल्यूज लिए हैं लॉन्ग टाइप वेरिएबल, दैट इज एम और एन. ठीक है, देन फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू फ्लोट एम डिवाइड बाई फ्लोट एन. इफ कंडीशन है इफ एम इज लेस देन 0 और n इज लेस देन 0 तो रिटर्न कर दो सिंपल, अदरवाइज क्या हो, रिकर्सिव कॉल हो कि रिजल्ट माइनस दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ m इंटू 2 n इंटू 3. रिटर्न रिजल्ट कैसे होगा, तो देखो मेन फंक्शन में हमने कॉल करवाई तो हमारे पास क्या है, f ऑफ 1,3. ठीक है, 1,3. तो यहाँ पे क्या है, फ्लोट रिजल्ट, तो एक रिजल्ट वेरिएबल रहेगा. ठीक है, तो उसने क्या किया, टाइप कास्ट किया हुआ है यहाँ पे फ्लोट लगा के,
तो m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? दैट इज 1, दैट इज इन फ्लोट, दैट इज 1.00 समथिंग, डिवाइड बाय फ्लोट ऑफ n, दैट इज 3.000. तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन आंसर क्या आएगा? 0.333 सोन अप टू आता रहेगा, ठीक है जी। अब कंडीशन क्या बोल रही है? इफ m की वैल्यू लेस देन n है, 1 इज लेस देन 0, नो फॉल्स। और n कितना है? 3 इज लेस देन 0, नो। तो ये कंडीशन तो नहीं चलेगी, तो हम एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे, राइट। एल्स ब्लॉक में क्या बोल रहा है? रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट माइनस, दैट इज 0.3333, ओके, माइनस नाउ f ऑफ, तो इसने बोला m इंटू 2, दिस इज m एंड दिस इज n, m इंटू 2, 1 इंटू 2 दैट इज 2, कॉमा n इंटू n, 3 इंटू 3 दैट इज 9, ओके। तो यहाँ पे फिर से रिकर्सिव कॉल होगी, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करते हैं। अर्लियर ऑनलाइन जावा कंपाइलर, गो टू दिस ऑनलाइन, आई हैव ओके, मैंने ये प्रोग्राम ऑनलाइन कंपाइलर पे रन किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिटिल चेंजेस किए हैं। यहाँ पे मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवाने के लिए एक प्रिंट लाइन स्टेटमेंट लिख दी, ताकि मुझे पता चले कि कितनी बार रिकर्सिव कॉल हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवाया है कि हाँ जी टोटल फाइनल रिजल्ट कितना रहेगा। फाइन, लेट अस रन दिस। Okay, so there is our output. See, our final result is 0.2000003, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? फाइनल आउटपुट। बट सी हाउ मेनी रिकर्सिव कॉल्स आर देयर? देयर आर मोर देन 30 रिकर्सिव कॉल्स, ठीक है। तो ये इतना टाइम कंज्यूमिंग रहेगा हमारे लिए। सो आई विल सजेस्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हाइल आफ्टर सॉल्विंग ऑल योर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको हर एक रिकर्सिव कॉल करनी है, तरह 30 रिकर्सिव कॉल सरप्राइजिंगली, है ना। अगर मैंने बीच में शुरू किया तो इस क्वेश्चन की वजह से मेरे बाकी के क्वेश्चन है ना जो वो लेफ्ट हो जाएंगे, राइट। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू यू, मतलब इट इज़ अप टू यू, बिकॉज ईच एंड एवरीबडी हैज़ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। बट इट इज़ जस्ट एडवाइजेबल, ठीक है, कि ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आपने लास्ट में सॉल्व करना है, आप जब आप पूरा पेपर आप सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। देखो इसने भी आपको 2 मार्क्स ही देने हैं, और एक सिंपल क्वेश्चन है वो भी आपको 2 नंबर ही देगा। तो इस पर टाइम वेस्ट ना करें और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करें अर्लियर। फाइन, सी आपको ऐसे ऐसे रिकर्सिव कॉल्स करनी होंगी एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ आई विल स्विच बैक टू माय क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर मिलेगा? 0.2, you will get this answer. Okay, I hope it is clear to you now. Okay. 67. Arrange the following types of, question number 67 said arrange the following types of machine in descending order of complexity. किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो ये क्या है, फ्लिन का क्लासिफिकेशन रहता है MIMD। पहले तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें हैं क्या, व्हाट इज़ MIMD, व्हाट इज़ SIMD एंड व्हाट इज़ SIST। MIMD क्या है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आई कैन राइट इट हियर, दिस इज मल्टीपल I for instruction, then M for multiple data, ओके जी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, these are very complex, ठीक है। नेक्स्ट इज SIMD। SIMD क्या होता है? दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी, सिंगल, फाइन, सिंगल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डेटा, राइट, सेम। तो पता चल गया जो मल्टीपल सिंगल इंग्लिश, ओके, कि ये कम है तो ये ज़्यादा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्या है? SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और सिंगल डेटा। अब देखो सिंगल इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, सिंगल इंस्ट्रक्शन
स्ट्रीम कॉमा सिंगल डेटा स्ट्रीम, सिंगल डेटा है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? सबसे ज़्यादा कौन है हमारा? ये कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद ये, दिस इज एट नंबर 1, दिस इज एट नंबर 2 एंड दिस इज एट नंबर 3, ठीक है ना, 1 2 and 3. This means B, then C, then A. That is BCA, Computer Application Bachelor, not Computer Bachelor of Computer Application. It is BCA. For MIMD, that is then you have SIMD and then SISD. I hope it is clear to you. Okay, you can get the इसके बारे में ना थोड़ा डिटेल से we'll make a separate video on that. But this time we are just going to solve the question now because video is getting lengthy if we spend more time on this. Okay. ओके, तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट SIMD है, तो इसमें हम सिंगल इंस्ट्रक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, फाइन। एंड SISD क्या है? एक न्यूमन कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई एट एनी टाइम या किसी भी टाइम के ऊपर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके जी, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 68। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, हैंडशेकिंग क्या है? हैंडशेकिंग प्रोग्राम्ड IO, इंटरप्ट इनिशिएटेड IO और IO प्रोसेसर, COA से क्वेश्चन आया है। दिस क्वेश्चन इज फॉर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, राइट। तो व्हाट इज हैंडशेकिंग? हैंडशेकिंग हमें प्रोवाइड, देखो हैंडशेकिंग मतलब दो चीज़ें तो रहेंगी। हैंडशेकिंग प्रोवाइड करेगा 2 लाइन्स, स्टॉप एंड एक्नॉलेजमेंट। सेंडर का यूज़ करता है एक स्टॉप लाइन टू सेंड द कंट्रोल सिग्नल टू रिसीवर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म करना है उसको कि डेटा ट्रांसमिशन, और वो रिसीवर यूज़ करेगा एक्नॉलेजमेंट लाइन कि हाँ कंट्रोल सिग्नल को भेजो, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के साथ। ओके, सो देयर आर रिक्वायर्स 2 कंट्रोल सिग्नल वर्किंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो यहाँ पे हमें एक क्या मिला? कैच, फाइन। वो कैच क्या है कि 2, हैंडशेकिंग का कंसेप्ट 2 के साथ आएगा, तो A का तो डायरेक्टली 2 हो गया, ठीक है जी। B का 4, प्रोग्राम्ड IO, तो अगर यहाँ से देखें, रिक्वायर CPU टू चेक द IO फ्लैग एंड परफॉर्म ट्रांसफर, एग्जैक्टली राइट, दिस इज राइट। देन इंटरप्ट इनिशिएटेड IO, इंटरप्ट इनिशिएटेड IO क्या होता है? इन इंटरप्ट इनिशिएटेड IO CPU चेक्स द स्टेटस ऑफ इंटरप्ट फ्लैग बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। देखो फ्लैग की हमने क्या चेक करनी है? हमें चेक करना है कि हाँ जी इसका जो फ्लैग है उसकी वैल्यू क्या है। When IO have data to send it, it generated interrupt informing CPU that that the device is ready to transfer, ठीक है ना। IO inform the CPU that device is ready to transfer, पहले चेक करो फिर ये बताएगा हाँ जी मैं रेडी हूँ, ट्रांसफर किया जाए डेटा। Then IO processor, the last it has local memory control large of, देखो प्रोसेसर इज व्हाट? CPU के साथ, तो ये कह रहा है कि कंट्रोल लार्ज सेट ऑफ IO डिवाइसेस आल्सो, तो D का 3rd। सो ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. Okay, let us move toward question number 69. Okay, ये कुछ ज़्यादा हो गया। Let us start question number 69. ठीक है, question number 69. Okay, what did it said? Which of the following is not an intermediate code form? Intermediate code form, compiler dependent से question आया है, तो A कह रहे syntax tree, B is 3 address code, 3rd one is quadruple and 4th one is postfix, ठीक है। तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन थी NTA वालों को, उन्होंने मार्क्स 12 कर दिया बिकॉज दे आर कंसिडर्ड ऑल ऑफ देम टू बी वैलिड। बट हम जो बेसिकली पढ़ते हैं वो हम क्या करते हैं, बट इफ़ आई हैव टू चूज ना वन आई विल गो फॉर दिस क्वाड्रपल्स, बट दिस इज मार्क्स 12 क्वेश्चन, राइट। यू हैव टू चूज वन, ठीक है। पेपर में तो एक टिक करोगे ना, ये तो बाद में आया मार्क्स 12, ठीक है, क्योंकि देयर इज सम काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी इन दिस क्वेश्चन, फाइन। Syntax tree should be used, 3 address code and postfix is also used. Okay, I hope it is clear. ठीक है, हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे ज़्यादा. It is marks to all. Okay, so question number 70. Question number 70 क्या बोल रहा है? TOC से आया. Let L1 is a z bar z. Z is an integer. L2 एक language है, that is a z complement. Is it what? It is integer. Or this is greater than equal to 0.
Okay, L3 is a language. W belongs to A, B का स्टार. Which of the following languages are regular? देखो इस क्वेश्चन में हमें रेगुलर लैंग्वेज को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी. तो रेगुलर लैंग्वेज को फाइंड आउट कैसे करेंगे? रेगुलर लैंग्वेज या तो फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट, इट शुड बी फाइनाइट. वी कैन कंस्ट्रक्ट DFA फ्रॉम हेयर और इधर NFA, राइट. ठीक है जी, फाइनाइट होनी चाहिए. और आप इसका DFA या NFA भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप यू कैन राइट एन रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम दैट. मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है जी. इन ब्रीफ इफ आई वांट टू से, अब ये बोल रहा है क्या ये एक रेगुलर लैंग्वेज रहेगी? देखो दिस इज नॉट रेगुलर, ठीक है ना. दिस इज नॉट रेगुलर. देखो क्यों? a raised to the power 2 raised to the power 3, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं फॉलो करेगा ये, ठीक है. तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा. नेक्स्ट क्या है? AZZ. L2 क्या है? देखो L2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AZZ ना, A पार KZ, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है जी. तो K की वैल्यू 0, इट कैन बी क्रिएटेड, है ना. मतलब ऐसा कुछ जो मुझे लगा था while I go and I attempt this paper, right. मतलब मैंने जो पेपर क्लियर किया. नो, L2 में क्या है? I'll justly go कि मैंने देखा कि ये कुछ ऐसा पैटर्न बन सकता है, जैसे कि 2K, है ना. मतलब एक वैल्यू को अगर हमने फिक्स करा, ठीक है जी, 2K, देन now let us move toward. So second L2 grammar is AZZ. Z की वैल्यू है greater than equal to 0 and L3 is. So L2 क्या बोल रहा है? AZZ और Z की वैल्यू greater than equal to 0. तो इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट. A KZ, फाइन, A KZ, A raised to the power KZ, ठीक है. और इसका हम ऑटोमेटा बना सकते हैं. इफ आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ K इज 0 1 2 so on up to n, कितने भी जाएगी, ठीक है. तो इसका हम DFA जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी. कैसे? A की वैल्यू पहले Z, देन A की वैल्यू दैट इज 0 Z, देन 2 2 ऐसे कुछ करके, ठीक है, 1 1 के साथ इंक्रीमेंट करके. ओके, ना जो थर्ड वाला है दैट इज WW. ओके, WW इज अ नॉट रेगुलर लैंग्वेज. रेगुलर लैंग्वेज क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे दोनों लैंग्वेज को कंपेयर करना है, ठीक है. और यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती, क्योंकि देखो ये तो इनफाइनाइट लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल AB है ना, यहाँ पे B का स्टार, और यहाँ पे मैं लिया AB B का स्टार. नाउ आई हैव नो, I couldn't have any mechanism to compare these values, ठीक है. तो ये तो रेगुलर है ही नहीं. तो I will go with L2 only, but I guess this is also marks to all question. I guess, I'm not sure about it, you need to confirm at your end, ठीक है. But I thought, I mean intuition हो रहा है मुझे कि this is marks to all question. I don't know why. Okay. Okay, so question number 71 says. Okay, so question number 71 says, suppose you are compiling on a machine with 1 byte character, 2 byte short, 4 byte integer and 8 byte double, and with alignment rule that requires the address of every primitive data element to be an integer multiple of the element size. This we need to take care, ठीक है. तो क्या बोल रहा है? Address of every primitive data element to be an integer multiple of the element size, ठीक है. Suppose further that the compiler is not permitted to reorder fields. compiler reorder नहीं करेगा fields को, तो padding use करेंगे हम alignment के लिए, ठीक है. How much space will be consumed by the following array? This A10 will consume how much amount of space, right. तो कैसे करना है? We need to do carefully this kind of question we need to do, right. तो क्या बोल रही है? स्ट्रक्चर है कुछ शॉर्ट कितना लेगा? 2 bytes,
character will take 1 bytes, then short will 2, character will 1, and double will take 8, and integer will take 4 bytes, right? Now let us take an example. Let us suppose that my address range start from 100. Okay, we are taking a scenario where my address may start from 100. Now I have to check whether, see this, what it has written, that the address of every primitive data element to be an integer multiple of the element size, or we can say that the address should be divisible by the size of this variable, right? For example, short is, we have to check if is 100 is divisible by 2 because size of this, right? So said yes, so we can say that 100 and 101 space is consumed for short. Now 102 and character take 1. Is it divisible by this? Right, this. So this is taken by the character. Now next we have short t. Short is taking 2 and it is 103 now. Now 103 is visible by 2. Then it said no. No, it will not do. Then what we do? At 103 we will do padding. We will do padding. Fine, yes. Now we pad by 1 space and now it is 104. Is 104 is divisible by 2? It said yes, fine. So 104 and 105, right? Next is we have 106. It is divisible by 1, right? It is divisible by 1. Okay, so this is done. It will be work. Next it is 107 and we have now double this. Now double will take how much? 8. Will it work? No. Okay, no. So padding 107 will take padding. Okay, 108 8 ones the 8 28 not divisible. 108 is not divisible by 8. Okay, then we have 109 no. 1010 110 sorry 110 no. 111 no. 112 8, that is 832. Yes, 102 at 112 it will divide 8. ठीक है, rest of this will pad. ठीक है, 109 110 till 111. ठीक है, 112 from here we will take 8 bytes. ठीक है, तो 8 bytes this will pad. 112 113 4 5 6 7 8. One 119, right? 119. Now it will taking the double. ठीक है, तो अभी हमारे पास है integer and we will taking 120. 120, what is the size of integer? 4. Is 120 is divisible by 4? Yes, right. And it will take how much memory? 4. So 120 121 122 up till 123. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितनी टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ मेमोरी हुई? सो अपर ऑर्डर minus lower order plus 1, that is 24 है ना, 24 bytes this will take for one element. For 10 element it will take 240 bytes, right? So option number 3 is our right answer in this case. I hope you will get this. Okay, 72 question. What did it said? Which of the following statement with respect to K segment pipelining are true? Maximum speed up that a pipeline can achieve is K theoretically. Yes. मैक्सिमम जो हमारा स्पीड अप रहेगा दैट इज द नंबर ऑफ स्टेजेस. ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है? नंबर ऑफ स्टेजेस. तो के सेगमेंट है, दैट इज ट्रू, तो ए तो आएगा. ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव मैक्सिमम स्पीड अप के इन के सेगमेंट पाइपलाइन. क्या ये इम्पॉसिबल है? इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव. ओके, थर्ड वाला क्या है? ऑल सेगमेंट इन पाइपलाइन इन टेक द सेम टाइम इन कंप्यूटेशन. नो, दिस इज नॉट ट्रू. तो this one and this one will go with AB only. ठीक है, it is impossible to achieve maximum speed up at K. Obviously different segment may require different amount of time ना.
पाइपलाइन इज मोस्ट एफिशिएंट विद सेगमेंट्स ऑफ द सेम ड्यूरेशन। इफेक्टिव रहती है जब सेम सेगमेंट का ड्यूरेशन रहता है हमारे पास, ठीक है। बट देर इज समथिंग लेस अचीवमेंट होती है मैक्सिमम स्पीड अप से, ठीक है। इतना हो सकता है बट इट विल नॉट। Okay, so question number 73 said let G1 and G2 be the arbitrary context free grammar and R क्या एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो इनमें से क्या रहेगा। देखो जी, क्या दो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर शुड बी इक्वल, क्या दो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इक्वल हो सकती हैं? ऑब्वियसली वी कैन चेक, ठीक है। क्या लैंग्वेज मतलब दैट इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लेस देन इक्वल टू L of G2? दिस इज ओके। सो क्वेश्चन नंबर Okay, so question number 73 said, let G1 and G2 be arbitrary context-free languages and R be an arbitrary language, arbitrary regular language. Consider the following, which of the following problems are undecidable. तो हमें देखना है कि कौन से problems है ना जो undecidable रहने वाले हैं, right? तो कौन से रहेंगे? उसने बोला क्या दो context-free grammar को equal हो सकती हैं? No, we can't. ये भी undecidable है, हमें नहीं पता। क्या L of G2 मतलब कंटेक्स्ट फ्री जो ग्रामर है, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल टू रहेगी? अगर इक्वल का मतलब लेस देन इक्वल टू भी कहाँ से आ गई, ये तो सेम ही हो गया ना एक तरह से। दिस इज ऑल्सो अनडिसाइडेबल, राइट। क्या एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर रेगुलर होगी? वी नेवर नो, ठीक है। क्या कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर रेगुलर है? ठीक है, वी डोंट नो, दिस इज ऑल्सो अनडिसाइडेबल। तो 73 का आंसर क्या रहेगा? ABC, ठीक है। I'll put a screenshot of the chart that will help you to check कि कौन सा अनडिसाइडेबल है और कौन सा नहीं, ठीक है, क्योंकि उस चार्ट से आपके फर्दर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आई होप many of you are aware of that, but still then I'll share with you guys. Okay, let us do question number 74. What did it said? In the context of a 3D computer graphics, now 3D, ठीक है, 3-dimension computer graphics है, which of the following statement are correct? Okay, under the perspective projection, each set of parallel line in an object do not stay parallel in an image. That is true. Okay, applying a perspective transformation in a graphic pipeline to a vertex involved dividing by its z coordinate. That is true. A computer graphic pipeline, rendering pipeline, or simply graphic pipeline, it is a conceptual model that describes what steps a graphic system need to perform to render a 3D screen to 2D. ठीक है ना? कैसे? जैसे मैंने 3D से 2D में किया तो मुझे पर्टिकुलर उसको कन्वर्जन करना है तो देयर शुड बी कोऑर्डिनेट का फर्क पड़ता है, ठीक है ना। सो वी हैव टू डिवाइड, आई कुडंट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली द फॉर्मूला, वो ओरिजिन के साथ वी शुड बी डिवाइडेड, है ना। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। perspective transformation is a linear transformation. No, this is false, ठीक है। तो which one are correct? A and B only correct. This is not linear. पर्सपेक्टिव क्या होता है? जो हम अपनी आई के साथ देख रहे हैं, ठीक है, वो है। Okay, let us do question number 75. Question number 75, so we are given R1 and R2. Okay, we have to perform the operation on that. ठीक है जी, R1 यूनियन R2, यूनियन में क्या करेंगे? 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 एंड देन वी हैव टू ऐड दिस, और डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी तो ये भी चला जाएगा, डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है। तो 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4, तो इसका आ जाएगा 1, ठीक है। ए का आना चाहिए 1, ओके, ए का आना चाहिए 1, बी क्या है? R1 माइनस R2, मतलब जो R2 की क्वांटिटी इसके साथ मैच कर रहे हैं वो हम काट देंगे, ठीक है। R1 शुड बी नॉट हैविंग द सेम एलिमेंट, तो कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं? 1 1, ठीक है, 1 1, तो R1 माइनस R2
वी आर गेटिंग 2 2 3 3, तो बी का आ गया 4, तो ए का 1 बी का 4, ओके ए का 1 बी का 4, इन दोनों में से कुछ होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालो, कॉमन तो ओनली 1 1 है, सो 2, सी इज 2, so option number 4 is matching with this. I hope it is clear to you. Okay, I hope it is clear. You can do calculation. It is from the discrete mathematics question and it is quite easy to perform. This option number 4 is correct.